Yes, in the last lecture we have completed the revision of unit 1. Unit 1 we have revised. Okay, whole unit 1 we have revised. Now unit 2. Okay, today and in the next lecture we will complete the revision of unit 2 and unit 3. Okay, then we will continue with our unit 4. Okay, keys. Okay, the next topic is keys. What is the keys? The keys plays an important role in relational database. What is a relational database? Yes, student. What is the meaning of relational database? In the last lecture, I think we had learned relational database. Okay. What is relational database? Yes, chalo. Data store in table. Rinky. Very good. Okay. Data store in table. Very good. So relational data means yeah, the data will be stored in the table. Okay. Keys are used. Okay. Keys, Keys. Keys are used to uniquely identify any records. Okay, of the table. Okay. Keys are used to identify the records uniquely. Okay. It is also used to identify the relationship between the tables. Okay. If you want to connect two tables, so you can also connect the two tables or multiple tables using the keys, primary key and foreign key that we have already done in the practical session. Now you know okay, how to apply primary key to the table, how to apply the foreign key, okay, how the data are connected to each other. Okay, when we are applying the primary key to any column in the table and same column we have made the primary foreign key in the another table, तो क्या करना पड़ेगा? We have to add the records. Okay, same records. The primary table में same record we have to enter the in the foreign key table में हमको enter करना है. ठीक है. So tables are connected using the keys. So there are different types of keys as you know. Okay, for example, here the student table is given to you, person table is given to you, ID, name, address, post, all are the columns of the student table. Attributes you can say. Okay, student is an entity, student is a table. Okay, or ID, name, address, post, all are the attributes of the entity. Student entity का attributes से ये सारे, और you can say column भी आप उसको बोल सकते हो. So in that table we have to make the keys. Okay, so ID is a key. Okay, we can make ID as a key. Okay, in person table there are columns: name, date of birth, passport number, license number, SSN. So we can make the keys to passport number, license number, SSN. Why? Because keys हम लोग किसको अप्लाई करेंगे? The column which can identify the records uniquely. Okay, जो students है, students का name possible है कि it will be same. Okay, two student का name same हो सकता है, पूरा name भी same हो सकता है, surname, first name, last name possibility है. Okay, कोर्स भी सेम हो सकता है, एड्रेस भी पॉसिबली है कि बाजू बाजू में है तो सेम हो सकता है. तो वी कैन नॉट मेक दिस कॉलम्स as a key. Why? Because keys are used to uniquely identify the records. We have to find column. Okay, हमको ऐसा कॉलम फाइंड करना है कि जो records को uniquely identify करे. For example, your roll number. Okay, तो you can identify students of SYT के जितने भी स्टूडेंट है उसको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं थ्रू दी रोल नंबर. ओके, आपका एक क्लास में दो स्टूडेंट्स का नेम सेम है. ओके, बट उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? थ्रू दी रोल नंबर. तो वी कैन मेक दी ID column या तो roll number column as a primary. Same in the person table, date of birth possible है, same है, मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकता है. ओके, तो डेट ऑफ बर्थ से हम लोग रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. ओके, तो नेम से भी हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बिकॉज नेम भी सेम हो सकता है, बट पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, SSN नंबर ऑल आर द यूनिक. ओके, ये हर एक जितने भी पर्सन उसका क्या होगा? यूनिक होगा. ओके, सो दिस आर द कीज. ओके, तो वी हैव टू फाइंड द कीज फ्रॉम द टेबल्स. ओके, बट कैसे? हम लोग कीज मतलब क्या? कॉलम्स को ही वी कैन असाइन दी कीज, कॉलम को ही वी कैन मेक दी कीज. ओके, कॉलम जो कॉलम्स है, कॉलम्स को ही हम लोग क्या करेंगे? कीज बनाएंगे. बट वी हैव टू फाइंड कि कौन सा कॉलम्स को हम लोग कीज बना सकते हैं. तो वैसे ही कॉलम्स को आपको कीज बनाना है कि जो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करे. ओके,
Yes, types of keys. Okay, there are 4 types of keys: primary key, candidate key, super key, and foreign key. Okay, you know, आपको पता है, we have already done. Okay, so many times we have done this: primary key, candidate key, super key, and foreign key. Primary key, the first is primary key. The primary, it is the first key which is used to identify one and only one instance of entity uniquely. Okay, and entry can contain multiple keys as we show in person table. Okay, एक टेबल में multiple keys possible है, but primary key तो कितना होगा, one. Okay, हम लोग एक ही कॉलम को primary key we can assign. Okay, प्राइमरी की हम लोग क्या करेंगे, एक ही कीज को हम लोग प्राइमरी, सॉरी, वन कॉलम, ओनली वन कॉलम को हम लोग प्राइमरी की वी कैन असाइन, वी कैन मेक ओनली वन प्राइमरी की. ओके, पर टेबल, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगा. एंड व्हेन वी आर असाइनिंग द प्राइमरी की टू एनी कॉलम, तो दैट कॉलम कैन नॉट बी कीप ब्लैंक. ओके, ये आपको याद रखना है, मतलब नल वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करेगा. Primary key cannot accept the null values. For example, in the student table, we are making the primary key to the ID column. Okay, तो आपको you have to enter the ID value. Okay, आपको ID जो है उसका value enter करना पड़ेगा. You cannot keep the blank. Why? Because you are assigning the primary key to the ID column. Clear? If yes, Arun, and accept only unique values. Okay, and accept only unique values. Primary key का two things you have to remember कि primary key accept only unique keys. हर एक keys जो है वो unique key, मतलब unique key and primary key दोनों में common ये कि they will take the unique values. Okay, वो unique value ही लेगा. एक मिनट students. Okay, primary key accept only unique values. कि अगर आईडी को आपने कॉलम, आईडी कॉलम पे इफ यू हैव साइनिंग द प्राइमरी की, तो आपने वन एंटर किया रोल नंबर आईडी, तो यू कैन नॉट अगेन द वन. ओके, आप अगेन वन एंटर नहीं कर सकते, यू हैव टू एंटर द अनदर रोल नंबर. यस अरुण, यूनिक की प्लस नॉट नल इक्वल्स टू प्राइमरी की. वेरी गुड. ओके, तो आपको ऐसे यू कैन रिमेम्बर के प्राइमरी की, दिस इज अ गुड टेक्निक. जो अरुण ने बोला ऐसा आप याद रख सकते हो कि यूनिक प्लस नॉट नल इक्वल्स टू प्राइमरी की. ओके, प्राइमरी की अगर है तो वो यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा एंड नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा. ओके, इन दिस वे यू कैन रिमेम्बर अबाउट द प्राइमरी की. यस, गुड. ओके, तो प्राइमरी की मतलब क्या है, इट कैन नॉट एक्सेप्ट द नल वैल्यूज एंड यू हैव टू एंटर द यूनिक वैल्यूज फॉर दैट कॉलम जो आपने असाइन किया है उसको. अब प्राइमरी unique value you have to enter. Okay, for each entity, selection of primary key is based on requirement and developers. Okay, for example, in the person table, so there are 3 keys. Okay, in the person table there are 3 keys. एक पासपोर्ट नंबर हो सकता है, लाइसेंस नंबर हो सकता है, एसएसएन नंबर हो सकता है. अगर किसी को प्राइमरी की बनाना है तो कोई डेवलपर डिसाइड करेगा नहीं, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एसएसएन नंबर कैन बी प्राइमरी की. किसी और की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से लाइसेंस नंबर दे कैन बी keep the primary key. Okay, so depends on the requirements, depends on the developers, depends on the programmer, depends on your requirements, you can decide कि कौन से कॉलम को प्राइमरी की बनाना है. Okay, now in this student table only one id, one key is there. Okay, student table में एक ही कीज है, तो अब id को ही you have to make the primary key. id को ही प्राइमरी की बनाना पड़ेगा. Why? Because student table there is only one column ऐसा है कि through which we can identify the records uniquely. But in the person table there are 3 keys. Okay, passport number भी है, license number भी है, SSN numbers भी है. Then you have to decide. Okay, according to your requirements. आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे रखना है. तो ऐसे नहीं कि only पासपोर्ट नंबर को हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं. नो, आप कोई भी कीज को प्राइमरी की बना सकते हो, बट एक ही प्राइमरी की. ओके, इफ यू आर मेकिंग द पासपोर्ट नंबर एज अ प्राइमरी की, तो आप लाइसेंस नंबर एसएसएन को प्राइमरी कीज नहीं बना सकते. ओके, अगर आपने लाइसेंस नंबर को प्राइमरी की बनाया तो यू कैन नॉट मेक द एसएसएन नंबर एंड पासपोर्ट नंबर एज प्राइमरी की. अगर एसएस नंबर को बनाया तो ये दो को आप नहीं बना सकते. मतलब इन शॉर्ट, एट पर टेबल ओनली वन प्राइमरी की इज देयर. ओके, तो आपको ये याद रखना है. एंड प्राइमरी की नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, एंड प्राइमरी की एक्सेप्ट ओनली unique values. Why? Because key है, so key is used to uniquely identify the record, so you cannot enter the duplicate values for the primary key. Okay, yes, we have already done. Candidate key, second is a candidate key.
sorry. A candidate key is an attribute or set of attributes which can uniquely identify the tuple. Okay, set of attributes. Okay, set of attributes. The remaining attributes except for the primary key are considered as a candidate key. Okay, the candidate keys are as strong as primary key. Okay, for example, in this person table. Okay, person table, if we have assigned the primary key to the passport number को हमने assign किया, तो there are three keys है. Okay, in the person table there are three keys. एक keys passport number उसको हमने primary key बना दिया. तो जो remaining keys जो है, the remaining keys can be treated as candidate keys. Okay, तो जो remaining keys कौन है, license number and SSN number, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, candidate key. Candidates is a set of attributes, okay, जो unique records को uniquely identify करेगा. The remaining attributes, okay, attributes and columns same है. Again I am repeating, okay, attributes or columns name same है. The remaining attributes except for the primary key are considered as candidates key. Okay, the candidates key are as strong as primary key. Okay, तो यहाँ पे जो मैंने explain किया वही है. In the employee table, for example, in this employee table, अगर ID, passport number, license number, and SSN all are the keys. If we have make the employee ID as a primary key हम लोग उसमें बनाते हैं, तो जो remaining keys है वो क्या हो जाएगा, candidates की. remaining keys को हम लोग क्या बोलेंगे, candidates की. but remaining keys हाँ, name and address नहीं, जो remaining keys है, remaining keys क्या हो जाएगा, candidates की. this you have to remember. Okay, I will ask this type of question in the practical exam. Viva में. What is candidate key, what is the primary key. Okay, I will give the one table up बोलूंगी तो वो टेबल में जितना कॉलम्स उसमें से कौन सा प्राइमरी की है, कौन सा फॉरेन की है. तो all these types of questions I will ask in the MCQ. Okay, MCQ में भी and practical exam में भी. Primary plus any other attributes, but primary plus any other attributes की जगह पे you can replace अरुण की primary plus remaining keys attributes. Okay, अरुण, अगर आप any other attributes लिखोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी attributes आप यूज कर सकते हो. तो कोई भी नहीं यूज कर सकते attributes तो only keys वाला attributes. Okay, so here you can modify की primary plus remaining keys, प्राइमरी की प्लस रिमेनिंग कीज. ओके, बट प्राइमरी की नहीं आप बोलोगे, प्राइमरी की अलग है. ओके, कैंडिडेट्स की मतलब क्या, ओनली आपको ऐसे लिखना है कि रिमेनिंग रिमेनिंग कीज इक्वल्स टू कैंडिडेट्स की. ओके, या तो प्राइमरी की छोड़ के, ओके, एक्सेप्ट द प्राइमरी की जो रिमेनिंग कीज है उसका कैंडिडेट से कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा. प्राइमरी प्लस एनी अदर एट्रीब्यूट्स ऐसे नहीं आप लिख सकते. ओके, यस. देन सुपर की. The next key is super key. The super key is a set of attributes which can uniquely identify the every keys का एक ही इंटेंशन. आपको लगेगा कि मैम ने हर एक लाइन में ऐसे लिखा है कि uniquely identify the tuple. यहाँ पे भी देखो uniquely identify the tuple. Tuple means क्या? What is the meaning of tuple? What is the meaning of tuple? चलो बताओ, what is the meaning of tuple? नो, टपल्स मतलब एट्रीब्यूट्स नहीं. रो, यस. गौरी, निशाल, यस, वेरी गुड. ओके, टपल मतलब क्या, रो. वेरी गुड. मीन्स जो स्टूडेंट्स हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं वो आंसर नहीं देते. ओके, सो स्टूडेंट्स यू हैव टू गिव आंसर्स. तुम आई कैन ऑब्जर्व ना ये, और जो भी आपका परफॉर्मेंस है, आंसर देना चाहिए सारे स्टूडेंट्स को. ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर. अरुण है, इरशाद है, कोहिनूर एंड वन मोर, 2 to 3 स्टूडेंट्स है और जो आंसर देते, बाकी नहीं देते. देना चाहिए. शुड गिव द आंसर स्टूडेंट्स, तो आई कैन ऑब्जर्व ना, ऑब्जर्व कर सकते हो आपका परफॉर्मेंस. ओके, कोई बात नहीं. वेरी गुड गौरी, निशाद. ओके, तो टपल मतलब क्या, रोज. ओके, जो रोज है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टपल्स. ओके, टपल मतलब क्या, वन रिकॉर्ड. तो पूरा टेबल है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर 10, उसका नेम, आईडी, फोन नंबर, तो उसका जो पूरा वन रो जो है वो रो को हम लोग क्या बोलेंगे, टपल. ओके, तो ये भी याद रखना है. दिस इज डीबीएमएस टर्म्स है, ऑल आर दी. ओके, एंड एट्रीब्यूट्स मतलब कॉलम्स. एट्रीब्यूट्स मतलब क्या, कॉलम्स. एंड रो मतलब टपल्स.
ओके, रो, टपल्स, एट्रीब्यूट्स एंड कॉलम्स। यस, ये सारी चीजें ना नोट डाउन करके रखो स्टूडेंट्स। ओके, ऑल दिस थिंग्स ना यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक। कि न्यू वर्ड्स है तो आपको एकदम से नहीं याद रहेगा। मैंने आपको द प्रीवियस लेक्चर्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू, तो न्यू टर्म्स है, ओके, न्यू वर्ड्स है, तो आपको उसको नोट डाउन करना है। जैसे जैसे उसको रीड करोगे, जैसे जैसे उसको पढ़ोगे तो यूज टू हो जाओगे। ओके, बट स्टार्टिंग में आपको थोड़ा उसको याद रखना पड़ेगा। यस, चलो, which super key, the super key is a set of attributes which can uniquely identify the tuple। ओके, हर एक कीज का वही काम है कि रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, बट उसका यूसेज जो है यूसेज इज डिफरेंट। द सुपर की इज अ सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट्स की। ओके, तो यू कैन मेक द कॉम्बिनेशन ऑफ वन की प्लस अनदर नोन एट्रीब्यूट्स। ओके, वन की प्लस नोन की एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन से आप सुपर की बना सकते हो। इन अबव एम्प्लॉय टेबल एग्जांपल, ओके, इन एम्प्लॉय टेबल एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी की है, पासपोर्ट नंबर, लाइसेंस नंबर, एसएसएन क्या है, कैंडिडेट्स की है। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम, ओके, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम यू कैन मेक एज अ सुपर की आप बना सकते हो। मतलब एक आपको आईडी में से लेना, एक सॉरी कैंडिडेट की में से लेना है एट्रीब्यूट, एंड सेकंड एट्रीब्यूट जो है वो रिमेनिंग जो एट्रीब्यूट्स है जो कीज नहीं है, नोन की एट्रीब्यूट्स। ओके, ऐसे आप ले सकते हो फॉर मेकिंग दी सुपर की। बिकॉज सी इन दी अबो एम्प्लॉय टेबल, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम को अगर हम सुपर की बना रहे हैं तो टू एम्प्लॉयज का नेम सेम हो सकता है, बट आईडी क्या होगा, डिफरेंट होगा। ओके, आईडी डिफरेंट होगा, तो उससे भी रिकॉर्ड्स यूनिकली आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। हेंस दिस कॉम्बिनेशन कैन आल्सो बी ए की। आप ऐसे कॉम्बिनेशन थ्रू भी यू कैन मेक द कीज। ओके, एक की एट्रीब्यूट एंड दूसरा जो है दैट्स अ नोन की एट्रीब्यूट्स। ओके, तो ऐसा कॉम्बिनेशन आप लोग बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर की। ओके, यस, ऐसे नहीं कि ओनली एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। ओके, आप कोई भी कॉम्बिनेशन यू कैन मेक, बट उससे क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड्स यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए। रिकॉर्ड शुड बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग दैट कॉम्बिनेशंस ऑफ कीज। ओके, ऐसा आपको कॉम्बिनेशन बनाना है कॉलम्स का। ओके, सॉरी, द नेक्स्ट इज फॉरेन की। ओके, द नेक्स्ट टाइप इज फॉरेन की। वी हैव ऑलरेडी डन, ओके, फॉरेन की प्रैक्टिकली हमने किया है काफी टाइम्स। वी हैव मेक द टेबल फॉरेन की एंड प्राइमरी की वाला। ठीक है, नाउ यू नो द सिंटैक्स भी आपको पता है कि हाउ टू मेक द sorry, how to assign the foreign key to any table। Okay, foreign key are the column of the table which is used to point to the primary key of another table। Okay, foreign keys are the column of the table which is used to point to the primary key of another table। Okay, हम लोग ऐसे ही करते, रेफरेंस देते ना। For that we have writing the references keyword। Okay, syntax क्या था, जो कॉलम को बनाना है फॉरेन की, कॉलम का नेम, पहले फॉरेन की लिखना है, यू हैव टू राइट द फॉरेन की, देन ओपन द राउंड ब्रैकेट्स, ओके, देन राइट द कॉलम नेम व्हिच यू वांट टू मेक द फॉरेन की। ओके, कॉलम का नेम लिखो, राउंड ब्रैकेट क्लोज करो, स्पेस देके रेफरेंसेस यू हैव टू राइट कीवर्ड, एंड देन जिसके साथ रेफरेंस करो, ओके, मतलब जिसमें प्राइम जो की को प्राइमरी की दिया है वो प्राइमरी की का टेबल नेम एंड देन प्राइम कॉलम नेम। ओके, ऐसे आपको रेफरेंसेस यू हैव टू असाइन। ठीक है, इन अ कंपनी एवरी एम्प्लॉय वर्क इन अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, एंड employee and department are two different entities। Okay, employees and department two different entities है, so we cannot store the information of the department in the employee table। तो हम लोग क्या करेंगे, see this is employee table, this is a department table। Okay, तो department ID and department name जो है that we have storing in the department table में, and employee table में हम लोग only क्या store करें, department ID। Okay, अगर हमको ID चाहिए तो डिपार्टमेंट नेम चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट टेबल में से वी कैन रिट्रीव द नेम, बट दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है, डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी जो है एम्प्लॉय टेबल में दैट इज द फॉरेन की, एंड डिपार्टमेंट आईडी जो है इन डिपार्टमेंट इट्स ओन टेबल में क्या है, प्राइमरी की। तो दिस इज प्राइमरी की एंड फॉरेन की यूज टू कनेक्ट द टू टेबल्स। ओके, दो टेबल्स को कनेक्ट करने के लिए वी कैन यूज द फॉरेन की एंड प्राइमरी की। ठीक है, तो डिपार्टमेंट आईडी इज फॉरेन की हो जाएगा इन द एम्प्लॉय टेबल में, एंड डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी इज अ प्राइमरी की। ओके, मतलब क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट आईडी में आपने डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट 1 2 3 4 डाला है, तो यू कैन एंटर ओनली डिपार्टमेंट 1 2 3 4। अगर आप कोई 5 6 डालने जाओगे तो
will not take, we will not accept. Okay, why? Because हमने क्या किया है, दोनों टेबल को कनेक्ट किया है. Okay, I think now you can understand. Okay, चलो. So these are the keys that we already done. Okay, now the next is unit 2 में next topic हम लोग लेते हैं normalization. We will do in the next lecture because in एक स्पेशल पूरा हमको लेक्चर लगेगा normalization एक्सप्लेन करने का, पढ़ने में. ठीक है, normalization थोड़ा टफ है, मतलब टफ नहीं है बट उस थोड़ा यू कैन से लेंथी टॉपिक है, उसको हम लोग एक अलग से लेक्चर में हम लोग रिवाइज करेंगे. तो हम लोग कीज हो गया, कंस्ट्रेंट्स हम लोग देख लेते हैं. ओके, चलो. Constraint in DBMS. Okay, I have already uploaded notes in the Google Classroom. Constraint. What is a constraint? Constraint मतलब क्या? Restrictions, rules, regulations. Okay, that impose on the database content and operations. Okay, they ensure the correctness of the data in the database. Data integrity. Okay, data integrity. To ensure the data integrity, okay, we can use the constraint. The constraints are a set of rules. It is used to maintain the quality of information. Constraint ensure that the data insertion, updating, and other processes have to be performed in such a way that data integrity is not affected. Okay, this constraint is used to guard against the accidental damage to the database. Okay, these all theories you have to write in आंसर शीट्स. ओके, अगर आपका पेपर होता आपको ये सब लिखना पड़ता. ओके, बट अभी लकीली एमसीक्यू है तो आप जो मेन कंसेप्ट है वही याद रख रहे हो. बट अगर थियरी पेपर होता, ठीक है, तो आपको ऐसे अच्छे से पूरे से आंसर व्हाट इज कंस्ट्रेंट, तो पहले कंस्ट्रेंट्स के बारे में यू हैव टू राइट कि यस ये है कंस्ट्रेंट, देन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स. ओके, तो प्लीज राइट डाउन द असाइनमेंट्स. ओके, असाइनमेंट्स लिखो. असाइनमेंट्स में आपको ऐसे लिखना है. And only 15 students have submitted the unit 1 का assignment submit किया है out of 50 में से. तो in the next week से I am going to start the correction of the assignments. Okay, तो फिर इसका assignment नहीं है तो please upload it within 2 days. Okay, आज एंड कल तक assignment submit कर दो. You can see कितने students को assignment दिया था मैंने. sorry wait. DBMS ना, only 13 students. 13 स्टूडेंट ने असाइनमेंट टर्न इन करो स्टूडेंट्स. ओके, आप टर्न इन करो. असाइनमेंट सबमिट करने के बाद यू हैव टू टर्न इन, तो ही वो मुझे दिखेगा, अदरवाइज मुझे नहीं दिखेगा. ठीक है, ये सी कितने स्टूडेंट्स ने सबमिट किया. व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? प्लीज सबमिट द असाइनमेंट. अजय, अनस, अरुण, गौरी, निशाद, आफरीन, कोहिनूर, ये विमला है, नितिन, पूजा, रिंकी, सरफराज, तौफीक, हबीबा, अब्दुल खान मिसिंग है. नो अटैचमेंट. अभिषेक ये भी मिसिंग है. बस ये सारे मिसिंग है, किसी ने किया ही नहीं है. और स्टूडेंट्स ये जो बाकी है, वीर प्रताप 3 अटैचमेंट्स, वीर प्रताप ने किया है. तो बाकी स्टूडेंट प्लीज ओके करो. अभिषेक, सादिया ने भी नहीं किया. अनिल अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, तो प्लीज सबमिट द असाइनमेंट. ओके, ज्योति का क्यों नहीं दिखा रहा है? ज्योति नहीं है इसमें. आपने टर्न इन किया था ज्योति आफ्टर द सबमिशन? अपने टर्न इन नहीं किया होगा. यू हैव टू टर्न इन आफ्टर अटैच योर असाइनमेंट्स. ओके, आपको उसमें मोबाइल में देखो ऑप्शन होगा. हम्म
ज्योति प्रसाद मिसिंग है, देखो आपने ना उसको ये नहीं किया होगा, टर्न इन नहीं किया होगा। ओके, तो टर्न इन करो उसको, तो ये मुझे दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं, मुझे आई विल नॉट गेट। ओके, चलो, तो प्लीज रिमेनिंग स्टूडेंट्स सबमिट करो असाइनमेंट 1। असाइनमेंट 2 का मैं आज डालूंगी, असाइनमेंट 2 भी तो क्वेश्चंस नहीं पता है ना, तो आई विल पुट द क्वेश्चन आल्सो, मैं क्वेश्चन भी उसमें असाइनमेंट 2 का क्वेश्चंस भी आई विल पुट, उसको भी सबमिट करो। ओके, चलो। ओके ज्योति, कोई बात नहीं बेटा, आपका पता है मुझे कि आपने असाइनमेंट किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। एक्चुअली मेरे सिस्टम में से ना ये मैंने फॉर्मेट किया ना, तो मेरा जो पुराना वाला नोट्स है वो नहीं है, तो मैं इसमें से ले रही हूँ, मैंने इसमें अपलोड किया था ना गूगल क्लासरूम में। ओके, चलो, कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो असाइनमेंट में आपको ऐसे अच्छे से आंसर लिखना है। ओके, प्रॉपरली यू हैव टू राइट। आई विल चेक द असाइनमेंट, चेक करती हूँ, आपको रिटर्न करूंगी असाइनमेंट, तो आप देख लेना उसमें वगैरह कुछ डालूंगी तो, ठीक है, चलो। Yes, types of constraints. There are 5 types of relational constraint. The first is domain constraint, tuple uniqueness constraint, key constraints, entity integrity constraints, and referential integrity constraints. Okay, all are the constraints. Theoretically ये constraints हमको पढ़ना है, इसको practically इसको करने के लिए we have the है unique की है, not null है, ठीक है, but theoretically you have to remember these 5 types of constraints. Okay, the first is domain constraint. What is the meaning of domain? The domain constraint define the domains or set of values of foreign attributes. Okay, it specifies that the values taken by the attributes must be the atomic value from its domain. जो डोमेन्स मतलब जो उसको हमने दिया है डेटा टाइप्स, वो डेटा टाइप्स ही हमको उस अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप वी हैव टू एंटर द वैल्यूज, दैट इज अ रूल, वो रूल है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट आईडी को अगर हमने वेर कर दिया है, तो इट विल टेक दी S001। अगर उसको हमने न्यूमेरिक दिया है या तो इंटीजर, वी हैव असाइन द डेटा टाइप टू स्टूडेंट आईडी कॉलम, देन वी हैव टू एंटर ओनली द नंबर्स। ओके, नेम, तो नेम को वेर कर लिया है, तो वेर करें वी कैन एंटर एज। ओके, तो एज को क्या लेना है, जो एज नंबर्स है वही वी हैव टू एंटर, अगर कैरेक्टर एंटर करेंगे तो वो प्रॉपर नहीं है, दैट इज अ रूल। ओके, एंड डोमेन कंस्ट्रेंट रूल्स है वो हम लोग अब उसको कैसे कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो डेटा टाइप से। ओके, दिस इज द फर्स्ट रूल, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डोमेन कंस्ट्रेंट मतलब क्या है, जो वैल्यूज कैसे असाइन करना है अकॉर्डिंग टू इसका डेटा टाइप जो हमने दिया उसके डोमेन्स में ही हमको डालना है। हियर वैल्यू a is not allowed since only integer value can be taken by the age attributes. Okay, so that is a domain constraint. Okay, through example you can remember. ओके, ये जो एग्जांपल्स आपको दिमाग में याद रखना है, तो आप इजीली याद हो जाएगा। टपल यूनिकनेस कंस्ट्रेंट। ओके, द टपल यूनिकनेस रो, टपल मतलब क्या, रो। टपल यूनिकनेस कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई दैट ऑल द टपल्स मस्ट बी नेसेसरली यूनिक इन रिलेशन। ओके, मतलब पूरा जो डेटा है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। क्लियर? ओके, सी S001, S002, S003, S004। ओके, तो ये क्या है, यूनिक है। अक्षय, अभिषेक, ओके, एज सेम हो सकता है, नेम कैन बी सेम। ओके, दो स्टूडेंट्स का नेम, दो या मल्टीपल स्टूडेंट्स का नेम कैन बी सेम, एज भी सेम हो सकता है। ओके, बट स्टूडेंट आईडी जो है वो डिफरेंट होगा। तो that is a tuple uniqueness constant. So how we can obtain the tuple uniqueness constant? Through the primary key. प्राइमरी की असाइन करोगे तो ऑटोमेटिकली जो ऑल दी वैल्यूज है वो क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द टपल यूनिकनेस कंस्ट्रेंट, दैट इज अ रूल। इन दिस टेबल S001 S002 बार एंट्रीज है, तो दिस रिलेशन डज नॉट सेटिस्फाई द टपल यूनिकनेस कंस्ट्रेंट, वो जो रूल्स है ये टेबल फॉलो नहीं कर रहा है। व्हाई? बिकॉज S001 S02 टाइम्स एंट्री है। ओके, तो ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई कीज, प्राइमरी कीज असाइन नहीं किया हुआ, यूनिक की असाइन नहीं किया हुआ। ओके, सो ये जो रूल है उसका कि टपल यूनिकनेस होना चाहिए, दैट आर नॉट सपोर्टेड। ओके, वो वायोलेट हो रहा है यहाँ पे। द नेक्स्ट इज की कंस्ट्रेंट। The key constraints specify that in any relation, all the values of primary key must be unit and the values of primary key must not be null. Okay, अगर हम primary key assign करेंगे तो primary key का value वो unique होना चाहिए and
नल नहीं होना चाहिए, वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। ओके, व्हाई? बिकॉज इफ वी आर असाइनिंग द प्राइमरी की टू द टेबल, तो वो टेबल जो है वो यूनिक वैल्यू मतलब कॉलम, जो कॉलम को हमने दिया है प्राइमरी की, वो कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली यूनिक वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, एंड ऑटोमेटिकली वो वैल्यू जो की है दैट विल टेक द यूनिक वैल्यूज। ओके, दैट इज अ की कंस्ट्रेंट। वो क्या हो गया? की कंस्ट्रेंट। अगर हम की यूज कर रहे हैं तो ये जो दो रूल्स है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा टू दी टेबल्स को। की कंस्टेंट, ओके, डोमेन कंस्टेंट, टपल यूनिकनेस कंस्टेंट, देन की कंस्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट। एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट स्पेसिफाई दैट no attributes of primary key must contain a null value. Again same rule है, this is because presence of null value in the primary key violates the uniqueness of property. सेम है, वही उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, हम लोग उसको ब्लैंक नल नहीं छोड़ सकते ऑब्वियसली। अगर हम प्राइमरी की ले रहे तो वी कैन नॉट कीप दी दैट प्राइमरी की कॉलम एज अ ब्लैंक, उसको हम लोग नहीं कर सकते, तो वही रूल है। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट, यस, मतलब फॉरेन की हमने असाइन किया। दिस कंस्टेंट इज एनफोर्स्ड व्हेन द फॉरेन की रेफरेंस इज the primary key of the relation. It specifies that all the values taken by the foreign key must either be available in the relation of primary key or be null. Okay, ये that is the main। अगर हमने फॉरेन की लिया है, ठीक है, तो वो फॉरेन की कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? जो उसके टेबल में हमने प्राइमरी की डाला हुआ है वही। मैंने आपको इसके पहले डिपार्टमेंट वाला एग्जांपल दिया था। ओके, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था। ओके, दैट इज अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ओके, इफ इन एम्प्लॉय टेबल वी आर डिपार्टमेंट लिया है फॉरेन की, एंड डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी एज अ प्राइमरी की, तो डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट से दैट ओनली डिपार्टमेंट्स यू कैन एंटर इन द प्राइमरी की एम्प्लॉय टेबल में। ओके, सॉरी, एम्प्लॉय टेबल में। दैट इज अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। ओके, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट फॉरेन की। Okay, the following two important rules emerges out due to referential constraint. कौन सा rule है? देखो, we cannot insert a record into the referencing relation if the corresponding record does not exist in the reference relations. Okay, अगर foreign की वाले टेबल में वो records नहीं है, सॉरी, प्राइमरी की वाले टेबल्स में वो record नहीं है, तो हम लोग उसमें एंटर नहीं कर सकते फॉरेन की। अगर डिपार्टमेंट टेबल में वो डिपार्टमेंट आईडी नहीं है, तो वी कैन नॉट एंटर दैट डिपार्टमेंट आईडी इन द एम्प्लॉय टेबल। मैंने आपको बताया, ठीक है, सेम थिंग है। We cannot delete or update a record of the reference relation if the corresponding record exists in the referencing relation. उसको हम लोग डिलीट भी नहीं कर सकते। ओके, उसको हम लोग डिलीट भी नहीं कर सकते। कंसिडर द फॉलोइंग टू रिलेशंस, यहाँ पे दिया है, एक स्टूडेंट टेबल है, द सेकंड इज डिपार्टमेंट टेबल। ओके, तो डिपार्टमेंट नंबर 14 हमने एंटर किया इन द स्टूडेंट टेबल में, बट डिपार्टमेंट नंबर 14 इससे खुद के टेबल में है ही नहीं, तो वी कैन नॉट एंटर। ओके, सो दैट इज अ फॉरेन की। ओके, दैट इज अ फॉरेन की। क्लियर? पीस। ओके, तो ये आपका हो गया इंटीग्रिटी, सॉरी, कंस्टेंट। कंस्टेंट, व्हाई वी आर यूजिंग द कंस्टेंट? टू फुलफिल द इंटीग्रिटी। ओके, इंटीग्रिटी फुलफिल करने के लिए। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? यस और नो? समझ में आ रहा है? वी हैव ऑलरेडी डन। ओके, जस्ट रिवाइज किया हम लोगों ने। ओके अरुण, गुड। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट